Okay. Now let's talk about the question number 9. What is the question number 9? Prove that or prove by vector method that the angle sustained on the semicircle is a right angle. Okay. So make a circle here and take this is the diameter. Okay. Take another point somewhere here. We have to prove that the angle sustained on the semicircle, okay, is what? 90 degree. Means you have to prove this equal to what? 90 degree. So if you have to prove this angle equal to 90 degree, then consider the triangle ABC here. Okay, what do we have to write on? Consider a circle of radius r. Consider a circle radius r and triangle ABC. What do we have to prove? To prove that angle BAC equal to 90 degree. Okay, let's assume that O is the center of the triangle. O is the center of the triangle, where BO equal to what? The OC. You can say that BO equal to what? The OC. Okay. Now, if you have to prove that the angle by vector method, okay, by vector method we have to prove that the angle BAC equal to 90 degree. It means that we have to prove that BA dot AC equal to what? 0. Because if two vectors are perpendicular to each other, then we can say that their dot product should be equal to 0. तो हमें ये प्रूव करना है यहाँ पे इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? 0 होगा. मैं एक यहाँ से इसको मिला ज्वाइन कर देता हूँ, A2O को ज्वाइन कर देता हूँ. ठीक है, लेट्स ज्वाइन A2O. Okay. Now, if I have to find out the vector, let's assume that this vector is basically, मैं इसको R vector बोलता हूँ और BO को मैं R vector बोलता हूँ. BO is basically R vector. तो OC भी कितना हो जाएगा? Can we say that is the same direction? So OC will be also R vector. Yes. Can we say that this is the R vector? Now, can we say that OA equal to R vector? Very important here. Pratham, can we say that OA equal to R vector? Vaishnavi, can we say that OA equal to R vector here? Yes or no? Let me know fast, guys. Sahil, don't comment, just speak bacha here. Okay, can we say that? Yes, sir. Vaishnavi? No, we cannot say that OA equal to R vector. Why? Why we cannot say that OA equal to R vector? यदि आपने BO को, अच्छा BO को R vector लिया तो OC equal to R vector होगा तो क्या इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है? ये रेडियस के मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता है. समझ में आ रहा है? रेडियस के मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता है, लेकिन ये दोनों वेक्टर को हम डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं सेम हो सकता है? OA एंड OB इज नॉट अ सेम. व्हाई? बिकॉज डायरेक्शन अलग अलग है ना. ये देखो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है. गॉट माय पॉइंट? Got my point? Now after that, let's assume that this is Yes, sir. A to B. I'll assume that this A to B is what? कोई एक वेक्टर ले लो. A to B is like X vector. And A to C, I'll assume that the Y vector. So what we have to prove basically? We have to prove that X vector dot Y vector equal to 0. ठीक है? For that, okay, now we can say that अभी हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे बोलो. अब यदि आप सपोज करो A से B पे आ रहे हो और B से O पे जा रहे हो, तो कैन वी से दैट हम A से O पे जा रहे हैं. डिस्प्लेसमेंट इफ यू मूव फ्रॉम A टू B, मतलब आप A से B पे जा रहे हो, A टू B जा रहे हो, प्लस उसके बाद आप B से O पे जा रहे हो, B से कहाँ पे जा रहे हो? O पे जा रहे हो. तो हम बोल सकते हैं आप कहाँ से कहाँ तक गए? बोलिए आप, बोलिए A टू O गए, आप A से O पे गए. यस, लेट्स अज्यूम दैट AO इक्वल टू Z वेक्टर. कैन वी से दैट? तो अभी हम यदि इसको लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे x वेक्टर प्लस व्हाट इज अ BO इज R वेक्टर R vector. is equal to what is AO? AO is Z वेक्टर. This is the first equation. Let's assume that this is the first equation. And from here हमें क्या प्रूव करना है कि x डॉट y कितना होगा? x डॉट y 0 होना चाहिए. x वेक्टर डॉट y वेक्टर कितना होना चाहिए? 0. यदि ये परपेंडिकुलर है तो, क्योंकि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट पक्का 0 होता है. अभी हम यहां से इसलिए x वेक्टर निकालेंगे तो x वेक्टर बराबर कितना आएगा? Z वेक्टर माइनस R वेक्टर. लेट्स अज्यूम दैट दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ अब आप y वेक्टर के लिए क्या करोगे? आप a से c पे जाएंगे हम. तो कैन वी से दैट इफ यू मूव फ्रॉम a टू c, देन आफ्टर दैट c टू o, देन c टू o इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो?
A2O, कैन वी से दैट, कितना हो जाएगा A2O। ना आफ्टर दैट यदि आप सबका वैल्यू रखिएगा तो कितना हो जाएगा, AC कितना है, व्हाट इज AC, AC इज y वेक्टर, AC इज y वेक्टर प्लस व्हाट इज CO, देखो OC इज r वेक्टर तो CO इज माइनस r वेक्टर, यस, इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO is z vector. Now if you find out the y from here, can we say that y equal to z vector plus ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा r vector. So this is r y vector and this is r x vector. Now find the dot product. दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखो कितना आ रहा है. Now if you find out x vector dot y vector, what you will get, x vector dot y vector equal to, जल्दी बताओ, x vector dot y vector कितना आ जाएगा. What is x vector basically, क्या x vector, it is a z vector minus r vector, okay, z vector minus r vector, okay, dot product with कितना हो जाएगा, z vector plus r vector, okay. Now so x vector dot y vector equal to, now listen guys, whenever you have na a plus b into a minus b, this is a vector minus b vector into a plus b into a vector plus b vector, डॉट प्रोडक्ट रहेगा तो आप इसकी जगह पे डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या क्या लिख सकते हो, a वेक्टर स्क्वायर, a वेक्टर स्क्वायर मींस व्हाट, z स्क्वायर, a प्लस b into a minus b है ना, a minus b into a plus b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस r स्क्वायर, ओके। और जब भी स्क्वायर की बात करते हैं इनका मतलब ये होता है कि हम किसके बारे में बात करें, मॉड ऑफ z के स्क्वायर की बात करें, माइनस मॉड ऑफ r की बात करें। व्हाट इज मॉड ऑफ z, z का मॉडुलस रेडियस ऑफ द सर्कल है तो ये r हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस, और ये ऑलरेडी ये r का रेडियस है तो उसका मॉड कितना होगा, r होगा, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज बेसिकली 0। एंड वी प्रूव्ड हियर कि x वेक्टर डॉट y वेक्टर कितना आया, 0। इट मींस दैट x वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू y वेक्टर। if x vector is perpendicular to y vector, it means that angle BAC equal to 90 degree. Am I clear with this? Yes? Got it guys? Yes, sir. चलो ठीक है, तो अभी हम दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 प्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट, ओके। तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम, ठीक है, ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, ओके। आप कोई भी एक ट्रायंगल बना लीजिए, ओके। मीडियन ड्रॉ करना है तो हम दूसरे कलर से क्या करते हैं, मीडियन ड्रॉ कर देते हैं। ये रहा इन सब का मीडियन, और कंकरेंट मींस बेसिकली व्हाट, एक पॉइंट पे, कंकरेंट मींस व्हाट, एक पॉइंट के। मैथ्स में हम हमेशा क्या करते हैं पता है आपको, मैथ्स हम लोग पहले ही मान लेते हैं वो होता है, बाद में हम उसको उसके कंडीशन को प्रूव करते हैं। कंकरेंट मींस व्हाट, एट वन पॉइंट, मतलब तीनों के तीनों एक पॉइंट पे मिलता है, एट वन पॉइंट। और बेसिकली उस पॉइंट का नाम क्या होता है पता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंट्रोइड। क्या उस पॉइंट का क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोला था उस पॉइंट को, सेंट्रोइड। तो लेट्स अज्यूम दैट, तो क्या हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर A B C is the vertex of triangle, ABC are the vertex of triangle, okay। and let's assume that ये A है, ये B है, ये C है, ये ले लो D E F। so can we say that AD comma BE and CF are the medians, okay, and G is the centroid of the triangle, and let's point meets at point G, okay। आप इसमें कंसिडर और कर सकते हो कि मान के चलो जी ए जो है, दिस वेक्टर एज ए वेक्टर, आई कंसिडर दिस वेक्टर एज व्हाट, द ए वेक्टर। मैं इसको, ये जो G2A है इसको मैं बोलता हूँ दिस इज द ए वेक्टर, ओके। G2B है, इनको मैं बोलता हूँ बी वेक्टर, सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। जी को आप ओरिजिन भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अभी आप क्या करोगे, G2C को मैं क्या बोलूंगा, दिस इज व्हाट, सी वेक्टर। G2D को मैं क्या बोलूंगा, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज डी वेक्टर, this is the E vector and this is, let's assume that F vector. Any problem guys? Clear with this point? We have to prove that ये तीनों के तीनों मीडियन यहीं पे आकर के मिलता है। मतलब यदि मैं यहां से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालूं, मतलब A to D के रेफरेंस से G का कोऑर्डिनेट निकालो, C to F के रेफरेंस से G का कोऑर्डिनेट निकालो, और B to E के रेफरेंस से G का कोऑर्डिनेट, तीनों का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, तीनों टाइप से क्या रहेगा, सेम रहेगा, ओके। नाउ साहिल,
साहिल ध्यान ध्यान दो, ए डी जो है, ए डी को जी इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना? हाँ अभी देखो, मतलब इस मैं ए जी का कोऑर्डिनेट निकालो ए डी के लिए तो भी सेम आना चाहिए, यदि इस यही पॉइंट पे मीट कर रहा है। बी ई को भी जी क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और सी एफ को भी क्या कर रहा है, जी इंटरनली डिवाइड कर रहा है। मतलब हम किसी भी तरह से यदि कोऑर्डिनेट निकाले, किसी भी मीडियन को लेकर के जी का कोऑर्डिनेट निकाले तो सेम आना चाहिए, हमें वो प्रूव करना है। दिस इज आवर एम। एम इज टू व्हाट, एम क्या है हमारा यहाँ पे, और टू प्रूव क्या है, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है, मीट at what, one point, and that point is basically called as what, centroid। ओके, हम फाइंड करके देखते हैं। अब ध्यान दो, तो उसके लिए मुझे पहले ए बी सी का रेफरेंस से मुझे डी ई एफ निकालना पड़ेगा, बिकॉज डी ई एफ हमने एज्यूम किया है। तो पहले डी वगैरह निकाल के देखते हैं कितना आता है, ई कितना आता है और एफ कितना आता है, हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। नाउ इफ यू लुक एट द ट्रायंगल, इफ यू लुक एट द ट्रायंगल जी बी डी, तो हम क्या लिख सकते हैं कि इफ आई मूव फ्रॉम, नाउ इफ आई मूव फ्रॉम, एवरीवन लुक एट हियर, आप जी से बी पे आए, आप जी से कहां पे गए, बी पे। ओके, मान के चलो ये जी हमारा घर है, बी साहिल का घर है, और डी सब वो जो स्कूल है, मतलब तो हमने क्या किया, हमारे घर से साहिल के घर पे गए, साहिल घर के घर से कहां पे गए, हम स्कूल गए। इनका मतलब हम डायरेक्ट यहां से भी बोल सकते हैं हम हमारे घर से कहां पे गए, स्कूल पे गए। तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो जी टू बी प्लस बी टू डी, मतलब आप बी से डी पे जा रहे हो, ठीक है। तो इनका मतलब आप कहां से कहां पे जा रहे हो, बोलो, जी से बी पे गए, बी से डी पे गए, इनका मतलब आप कहां से कहां तक मूव किए, यू मूव फ्रॉम जी टू डी। क्लियर? ओके, नाउ अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें डी वेक्टर चाहिए, हमें क्या चाहिए, बेसिकली डी वेक्टर चाहिए। अब दूसरे टर्म में आप यदि इसको डिफाइन करोगे तो हम क्या लिख सकते हैं, जीबी इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ बी वेक्टर, जीबी इज अ बी वेक्टर। ओके, देन आफ्टर दैट बीडी इज, व्हाट इज बीडी, बताओ बीडी क्या है, बीडी, बीडी को मान के चलो ये एक्स वेक्टर है। यदि बीडी एक्स वेक्टर है तो आप ये बेसिकली ये पार्ट और ये पार्ट भी इक्वल है, तो हम इसको भी बोल सकते हैं एक्स वेक्टर है, यस और नो? तो कैन वी से दैट दिस इज द एक्स वेक्टर, दिस इज द व्हाट, एक्स वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हाट इज जीडी, जीडी कितना हो जाएगा, कैन वी से दैट डी वेक्टर, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अभी आप क्या करो, दूसरे साइड ट्राई करो, इस साइड में। तो कैन आई मूव फ्रॉम जी टू सी, जी टू सी जाते हैं, फिर उसके बाद सी टू डी जाएंगे, सी टू डी, सी टू डी, कैन वी से दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, जी टू डी, जी टू डी। अच्छा अब ध्यान दो, जी सी इज बेसिकली सी वेक्टर प्लस व्हाट इज सी डी वेक्टर, तो डी सी एक्स है, डी टू सी जा रहे हो ना तो आप उसको एक्स वेक्टर लिखते हो, तो आप जब सी टू डी आओगे तो उसको क्या लिखोगे, माइनस एक्स वेक्टर लिख सकते हैं, एनी प्रॉब्लम? तो सेम कैन आई राइट डाउन हियर, सी डी इज बेसिकली माइनस एक्स वेक्टर इज इक्वल टू जीडी इज डी वेक्टर। Okay, from here we can write on c vector minus x vector equal to d vector. This is, let's assume that's equation second. Now can we add this equation first, and equation second, तो हमें d मिल जाएगा, yes, can we add these two? जब इन दोनों को आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, what will get from here, if we add this, तो क्या मिलेगा बोलो, b vector plus x vector equal to d vector, और फिर नीचे में क्या है, सी वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर। अब आप क्या करो, इनको और इनको कट कर दो, ऐड करने पे कितना हो जाएगा, ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर। अच्छा, मतलब यदि ये डी के बराबर हमने क्या किया, बी प्लस सी बाई टू, तो सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट ऑन सिमिलरली, बोलो, सिमिलरली ई वेक्टर लिखना होगा तो ई वेक्टर क्या लिखूंगा मैं, ई वेक्टर इक्वल टू, देखो डी वेक्टर क्या है, बी प्लस सी बाई टू, ई वेक्टर क्या होगा, ए प्लस सी बाई टू, और टू ई कितना होगा, ए प्लस सी, सही है, ए प्लस सी। ओके, अभी मैं यदि एफ लिखूंगा तो एफ वेक्टर कितना होगा, टू एफ वेक्टर क्या होगा बोलो, अरे देखो ना, जब बी की बात, बी सी की बात करें तो डबल ऑफ डी बराबर बी प्लस सी, तो डबल ऑफ ई बराबर ए प्लस सी, तो डबल ऑफ एफ बराबर, गाइस डबल ऑफ एफ इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी। कोई तकलीफ है इसमें? अब एक बात यहाँ पे ध्यान से देखिए, ओके, यहाँ पे क्या है, बी सी है इक्वल टू टू डी है, यहाँ पे क्या है, टू ई है दैट इक्वल टू व्हाट, ए सी है, यहाँ पे मतलब ए बी है, तो इसमें ए बी है तो सी की कमी है, इसमें ए सी है तो बी की कमी है, और इसमें क्या है, बी सी है तो ए की कमी है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि पहले ये वाला जो इस इक्वेशन में मैं दोनों साइड ए से ऐड कर देता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा,
2d प्लस ए, ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2d प्लस ए। दोनों साइड मैंने इस इक्वेशन में क्या किया, a ऐड कर दिया, तो हमें a ऐड करेंगे तो इधर भी a ऐड हो जाएगा। ठीक है, तकलीफ? जल्दी बताइए, तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2d प्लस ए। अच्छा गाइज एक बात बताओ, यदि हमें ये पता है a वेक्टर है, ये पता है b वेक्टर है, और ये पता है c वेक्टर है, तो सेंट्रोइड कितना होता है गाइज? सेंट्रोइड कितना होता है? a plus b plus c divided by 3. a plus b plus c divided by 3. So can we take 3 here, this side on this side also? So from here can we write on the centroid we got, that will be equal to basically g का कोऑर्डिनेट है, और वो कितना हो जाएगा बोलो, 2d वेक्टर प्लस a वेक्टर डिवाइडेड बाय 3। ये कौन से मीडियन के रेफरेंस में लिखा हूं मैं? ये कौन से मीडियन के रेफरेंस में लिखा हूं? एडी के रेफरेंस में। किसके मीडियन के रेफरेंस में लिखा हूं? मीडियन एडी। देख रहा है ना, ए और डी को हमने कंबाइन किया, मींस आई गॉट विथ रेफरेंस टू एडी द जी बराबर कितना है, 2d प्लस ए बाई 3। मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 2d प्लस ए वेक्टर बाई 3। अच्छा अभी मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना, अभी मैं दूसरे के करस्पॉन्डिंग लिख रहा हूं, दूसरे करस्पॉन्डिंग में क्या आता है देखते हैं। ओके, दूसरे मीडियन के करस्पॉन्डिंग में हम देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो आपने दूसरा फाइंड किया हुआ है, अभी आप क्या कीजिए, दूसरे वाले इक्वेशन को देखिए। दूसरा आपको क्या मिला हुआ है कि 2e इक्वल टू व्हाट इज गिवन, 2e इक्वल टू गाइस, 2e कितना आया है, व्हाट इज 2e? और वी कैन से दैट यहाँ पे कि a वेक्टर प्लस c वेक्टर वी हैव, ये देखो a वेक्टर प्लस c वेक्टर, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, जस्ट अ सेकंड, मैं इसकी बात कर रहा हूं, दिस पार्ट, जस्ट सेकंड गाइस, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो व्हाट वी हैव, a प्लस c वेक्टर इक्वल टू व्हाट, 2e। now just add b both the side, so what I'll get, a plus b plus c equal to 2e vector plus b vector। ओके, ये आ जाएगा ना, व्हाट इज a plus b plus c? यदि मैं a और b plus c पता है, तो यदि मैं सेंट्रोइड की बात करूंगा तो कैन आई डिवाइड बाय 3 here and can I divide by 3 here? This becomes what, centroid of the triangle, and that will be equal to what, 2e plus b divided by 3। यस, 2e प्लस बी डिवाइड बाय 3। आप तो एक तो ये मेथड से आप अडॉप्ट कर सकते हो। ओके, एक मेथड ये आपके पास है अडॉप्ट करने के लिए। दूसरा मेथड क्या है कि इस वाले कोऑर्डिनेट को, रुक जाओ एक मिनट, हमें मीडियन दिया हुआ था ना, तो आप ना एक सेकेंड रुकिए, आप लोग थोड़ा सा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान दो, जस्ट सेकेंड गाइस, इसमें थोड़ा सा आप ना चेंज कीजिए, क्योंकि मीडियन दिया हुआ था, पॉइंट नहीं दिया हुआ था, तो हमें मीडियन दिया, और वी नो दैट मीडियन क्या करता है, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब ये 2 है और ये कितना है, 1 है। तो यदि मुझे इसका कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो कितना होगा, 2d प्लस a डिवाइडेड बाय 3। तो कैन वी से दैट दिस इज आर सेंट्रोइड? तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 दैट इक्वल टू द सेंट्रोइड। ओके, द सेंट्रोइड g वेक्टर। और यहाँ पे भी क्या है, ये कौन से मीडियन के लिए, दिस इज द मीडियन, दिस इज द मीडियन फॉर व्हिच मीडियन, और आप बोल सकते हो दिस इज फॉर एडी मीडियन, एडी मीडियन के लिए है। अब कैन वी से दैट दिस इज अ सेंट्रोइड, दिस इज अ सेंट्रोइड गाइस फॉर व्हिच मीडियन, ये कौन से मीडियन के लिए, ये जी 2e प्लस बी बाय 3, 2e मतलब दिस डिवाइड इनटू 2:1 ना, तो कितना हो जाएगा बोलो, ये कौन से मीडियन के लिए, बी मीडियन के लिए, तो दिस इज द फॉर बीई मीडियन, तो दिस इज व्हाट, a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 3। ओके, नाउ अभी थर्ड मीडियन के लिए चेक करते हैं, CF के लिए। तो वी हैव बेसिकली हमने फाइंड किया था कि a प्लस बी, गाइस क्या आया था हमारे पास कि 2f इज इक्वल टू a प्लस बी। नाउ ऐड बोथ द साइड बाय c, यहाँ भी c ऐड कर दो और यहाँ भी c ऐड कर दो। नाउ डिवाइड बाय दिस साइड बाय 3 आल्सो, दिस साइड बाय 3 आल्सो, कैन वी से दैट दिस इज द व्हाट, अगेन द सेंट्रोइड, दिस अगेन सेंट्रोइड। Okay, and that will be equal to what, a plus b plus c divided by 3, and this is the for CF median। इनका मतलब क्या हुआ कि आप यदि AD मीडियन को रेफरेंस लेकर के G पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है, आप यदि CF मीडियन को रेफरेंस लेकर के G पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं एंड BE मीडियन को रेफरेंस लेकर के जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते, सब में कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, सबका कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है बोलो, सबका कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी
डिवाइड बाय 3, ये देखो आपने एडी मीडियन लिया तो भी जी का कोऑर्डिनेट वही है, आपने बी मीडियन लिया तो भी जी का कोऑर्डिनेट वही है, और जब आपने सी एफ मीडियन लिया तो भी आपका जी का कोऑर्डिनेट वही है। मतलब आप किसी भी मीडियन से लीजिए, ये पॉइंट तीनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। मींस कैन वी से दैट हियर कि दीज थ्री मीडियन मीट्स एट दिस पॉइंट एंड दैट्स व्हाई, ओके, क्या क्या होगा बोलो, मीडियंस आर कंकरेंट, मीडियंस आर व्हाट, सो दैट medians are concurrent। क्लियर, समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें गाइस, अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, Yes, sir. नाउ okay, so next question we have the prove that the altitudes of a triangle are concurrent। what is altitudes? Basically altitude means what, the perpendicular, it means that perpendicular। so we have a triangle, एक ट्रायंगल आप बना लो, तो सेम पहले वही करना है, लेकिन अभी क्या मीडियन की जगह पर हम क्या लेंगे, अल्टीट्यूड लेंगे, परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, दीज आर नॉट कंकरेंट, हमें वो प्रूव करना है। एंड व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द परपेंडिकुलर, इट मींस दैट हमें डॉट प्रोडक्ट प्रूव करना है। कितना डॉट प्रोडक्ट हमें बेसिकली प्रूव करना है, कितना, 90 डिग्री। तो आपने यहाँ से एक अल्टीट्यूड यहाँ पे ड्रॉ किया, ओके, दिस इज नॉट द इक्वल, ओके, दिस साइड इज नॉट इक्वल टू दिस साइड, ये क्या है, 90 डिग्री है, दिस इज व्हाट 90 डिग्री बेसिकली। ओके, नाउ आफ्टर दैट सपोज आपने एक अल्टीट्यूड यहाँ पे भी ड्रॉ किया, ओके, जस्ट सेकेंड, यहां पर आपने ड्रॉ किया, ठीक है। नाउ थर्ड, ये दोनों अल्टीट्यूड हमने एज्यूम किया, और क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि थर्ड अल्टीट्यूड भी क्या होता है, थर्ड अल्टीट्यूड क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। लेकिन मैं इनको परपेंडिकुलर नहीं मान रहा हूं, ओके, आई जस्ट टेक दिस एज अ नॉर्मल है, ओके, ऐसे हम नॉर्मल ले रहे हैं, हम परपेंडिकुलर नहीं मान रहे, ओके। हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या है, बेसिकली परपेंडिकुलर है। सो प्रूव दैट अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल्स आर कंकरेंट, सारे अल्टीट्यूड कंकरेंट होता था, हम रिवर्स सोचेंगे, हम ये लेंगे कि ये सारे कंकरेंट है, ये तीनों के तीनों जो हमें लाइन है, ये दो अल्टीट्यूड और ये तीसरा जो लाइन है कंकरेंट है। यदि ये कंकरेंट है तो हम ये प्रूव करेंगे ये क्या है, 90 डिग्री, ओके, दैट वी हैव टू प्रूव इट, ओके। so let's assume that consider a triangle, consider a triangle, the same, the A B C। now guys, when the altitude meet, okay, when altitude meet, that is basically called as the orthocenter। क्या बोलते हैं उसको, orthocenter बोलते हैं। तो ये आपका orthocenter है, this is basically what, orthocenter। let's assume that this point is O point, ये कौन सा पॉइंट है, O point है, ऐसा मान लेते हैं कि this is the O point, this is the what, the A vector, मान लो this is the what, the B vector, the C vector, let's assume that this point is a D, so D vector, let's assume that this is the what, ये एक काम करो, ये ले लो E, E ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, E वेक्टर, एंड पुट हियर अल्टीट्यूड, यहाँ पे अल्टीट्यूड हटा दो, जस्ट सेकेंड, ओके, अल्टीट्यूड यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे ये 90 डिग्री, एंड दिस इज द व्हाट, द F, दिस पॉइंट है F, ओके, ये कौन सा हो जाएगा, दिस विल बी द F वेक्टर, ये जो साइड रहेगा दिस विल बी द व्हाट, F वेक्टर, ओके। नाउ तो हमें ये प्रूफ करना है बेसिकली, ये एंगल जो है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ओके, लेट्स डू इट। सो वी कैन से द पॉइंट जहां पे अल्टीट्यूड सारे मिलेंगे, कंकरेंट होंगे, उसको क्या बोलते हैं बेसिकली हम, ऑर्थोसेंटर। लेट्स अज्यूम दैट कुछ देर के लिए क्या आपका ऑर्थोसेंटर O है और ओरिजिन है, ऐसे भी बोल सकते हो आप। द कंसीडर अ ट्रायंगल द ABC, कंसीडर अ ट्रायंगल ABC, ओके, in which AD and AD and AD and B, AD and B is, and AD and B are altitude,
AD and B are what? Altitude. Okay. O is the point where altitudes meets. What do we have to prove? क्या प्रूव करना है? What do we have to prove? To prove, जल्दी बताओ क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना पड़ेगा यहाँ पे गाइस? F is 90 degree. ओके, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो ये आपका AB पे परपेंडिकुलर है, ओके, AB पे परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर पे कौन परपेंडिकुलर है? CF. I have to prove that AB पे परपेंडिकुलर है CF. यस, मींस AB पे आपको प्रूव करना पड़ेगा CF इज परपेंडिकुलर, मींस आप ये प्रूव कर देंगे दिस एंगल इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री. मींस इफ यू वांट टू प्रूव दैट कि AB इज परपेंडिकुलर टू CF और CF इज परपेंडिकुलर टू AB, कुछ भी दोनों में से कुछ भी आप देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वी हैव टू प्रूव दैट CF इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? द CF इज परपेंडिकुलर टू AB. इट मींस दैट दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा गाइस? दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? जब कुछ भी कोई चीज पे परपेंडिकुलर होता है तो वो कितना होता है उसका डॉट प्रोडक्ट? जल्दी बताओ, अरे बताओ जल्दी से, डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? जीरो. जीरो एग्जैक्टली. नाउ अभी हमें गिवन क्या दिया है कि ए ई पे परपेंडिकुलर क्या है? अच्छा, हमें क्या दिया है कि एडी इज परपेंडिकुलर. नाउ गिवन दैट, क्या गिवन है बताओ? कि एडी इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? बीसी. guys, AD is perpendicular to BC. yes, तो AD is perpendicular to BC. इनका मतलब क्या हो गया? यदि AD परपेंडिकुलर है BC पे तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि AO परपेंडिकुलर होगा किस पे? BC पे. बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, इसको समझो, इधर ध्यान दो. ये पॉइंट हुआ तुम्हारा B, ये पॉइंट हुआ तुम्हारा C, और ये तुम्हारा AD हुआ. ये क्या हुआ? AD. अब क्या रहा कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC. साइड समझा? और बीच में तुम्हारा O है. हम ये भी तो बोल सकते हैं कि AD परपेंडिकुलर है BC पे, इनका मतलब OD भी परपेंडिकुलर है BC पे. इनका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि AO जो होगा, AO वेक्टर की बात करेंगे तो, ओके, वेक्टर की बात करेंगे तो हम ये भी तो बोल सकते हैं AO वेक्टर AO जो होगा वो उस लाइन को आप नीचे लेके आइएगा तो AO इज आल्सो परपेंडिकुलर टू BC. यस, बोलो ये करेक्ट है? Yes. तीनों चीज में कुछ भी हम यहाँ पे ले सकते हैं. तो इफ AD वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू BC और AD के डायरेक्शन में ही क्या है, आप AO बोलो OA बोलो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है. इट मींस दैट वी कैन से दैट हियर, आप AO ले लो, कोई तकलीफ नहीं. वी कैन से दैट कि AO वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू व्हाट? BC. अच्छा, O to A है आपका क्या? A वेक्टर. तो A to O क्या करना होगा? मतलब AO वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होगा किसके साथ? BC के साथ, वो कितना होगा? जीरो. इट इज ए गिवन ना कि दोनों परपेंडिकुलर है, कि AD इज अल्टीट्यूड. ओके, ये दिया है, इनका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? जीरो. अच्छा, AO के जगह हम कितना लिखेंगे? इट इज अ माइनस A वेक्टर डॉट BC कितना होगा? तो C का कोऑर्डिनेट कितना है? C, और A का कोऑर्डिनेट कितना है? B. तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब कितना हो जाएगा? C वेक्टर माइनस, बोलो, A वेक्टर इक्वल टू जीरो. अब इस माइनस को उस साइड भेज दीजिए. माइनस को उस साइड भेजिएगा तो क्या मिलेगा? A वेक्टर डॉट C वेक्टर माइनस B वेक्टर, C वेक्टर माइनस नॉट B वेक्टर, C वेक्टर माइनस A वेक्टर इक्वल टू जीरो. एंड इफ यू सॉल्व दिस क्या मिलेगा आपको? जल्दी बताओ गाइस. A वेक्टर डॉट पार्टिसिपेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है. A वेक्टर डॉट C वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट A वेक्टर इक्वल टू जीरो. मींस कैन वी से दैट A वेक्टर डॉट C वेक्टर is equal to A dot A is basically mod of A का whole square. okay, mod of A का whole square. any problem? चलो, ये हमने एक रिलेशन डिफाइन कर लिया, नाउ फर्दर क्या दिया हुआ है? गिवन क्या दिया? गिवन दैट, क्या गिवन दिया है? कि B इज परपेंडिकुलर टू बोलो AC. ऐसी. अच्छा, BE यदि परपेंडिकुलर टू AC है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि BO इज आल्सो परपेंडिकुलर टू AC, उसी के डायरेक्शन में है. और यदि दोनों परपेंडिकुलर है तो कैन वी से दैट कि BO वेक्टर डॉट, ओके, क्या AC वेक्टर
दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। BO मतलब क्या, व्हाट इज BO, O to B इज B, तो व्हाट इज B to O, तो आप सीधा आ रहे तो B है, उल्टा जाओगे तो माइनस B हो जाएगा, तो माइनस B वेक्टर डॉट व्हाट इज AC वेक्टर A to C, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो C वेक्टर माइनस A वेक्टर, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर C है, A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A है, तो कितना हो जाएगा बोलो, C वेक्टर माइनस A वेक्टर इक्वल टू 0। अभी माइनस को उधर भेज दो, माइनस उधर जाकर कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अब माइनस 0 को यदि माइनस से डिवाइड भी कर दोगे -1 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका बचेगा कितना बोलो, B वेक्टर, यस, B वेक्टर डॉट C वेक्टर माइनस, अच्छा कहीं पे हम लोगों ने कुछ मिस्टेक किया है क्या, देखो एक बार, ये BC है ना, ये BC है ना, तो यहाँ पे C माइनस B होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ये BC है ना, BC है तो कितना होगा C माइनस B ना, ये कितना हो जाएगा गाइस, आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, यहाँ पे ये नहीं आएगा, जस्ट अ सेकेंड, तो C वेक्टर माइनस यहाँ पे क्या आएगा B वेक्टर, यहाँ पे कितना हो जाएगा A डॉट B वेक्टर, ओके, तो A डॉट C इक्वल टू व्हाट, A डॉट B, ये पहला रिलेशन आया। अब यहाँ पे यदि आप सॉल्व कीजिएगा क्या मिलेगा, B डॉट C माइनस B डॉट A इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट B डॉट C इक्वल टू B डॉट A, दिस पार्ट क्लियर, B डॉट C इक्वल टू B डॉट A, ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट, हमें चेक क्या करना है कि CF इज परपेंडिकुलर टू AB, नाउ सो दैट अब हम क्या करते हैं कि